بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مولانا طارق جمیل بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میری والدہ کی طبیعت اچانک بگڑ گئی تو ہم نے انہیں ڈاکٹر ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا۔ میں اس وقت تبلیغ کے سلسلے میں اپنی جماعت کے ساتھ بلوچستان میں تھا۔ 2 دن بعد میں ڈاکٹر ہسپتال میں اپنی والدہ سے ملنے اور ان کی تیمارداری کرنے کے لیے وارڈ میں ان کے بیڈ کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں نے ایک عورت کو دیکھا جس کے کندھوں پر ریشہ اور بے شمار کیڑے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے گھن بھی آ رہی تھی اور میں توبہ استغفار بھی کر رہا تھا۔ 2 لیڈی ڈاکٹرز اس عورت کے پاس کھڑی صفائی وغیرہ کر رہی تھی جبکہ یہ چیخ کر رو رہی تھی۔ یہ دیکھ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے منہ سے بے ساختہ توبہ استغفار نکل رہا تھا۔ خیر، اپنی والدہ کی تیمارداری کرنے اور ان سے ملنے ملانے کے بعد ڈاکٹر سے ان کی صحت کی مکمل تفصیلات لیں۔ سب کچھ کرنے کے بعد میں اپنی والدہ کے پاؤں دبا رہا تھا تو ان کو نیند آ گئی۔ جب میں نے محسوس کیا کہ میری والدہ اب گہری نیند میں جا چکی ہیں تو میں اس مریضہ عورت کے بیڈ پر جا پہنچا جس کے کندھے پر ریشہ وغیرہ تھا۔ میں اس کے پاس جا بیٹھا اور اس کی اس حالت کے بارے میں پوچھا تو اس کی داستان اور اس کے گناہوں کا سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس عورت نے اپنی زندگی کی روداد مجھے کچھ یوں سنائی کہ میرا نام سمینہ ہے۔ میں آج اپنی زندگی کا سب سے بڑا بوجھ اتارنے جا رہی ہوں، وہ بوجھ جو میری زندگی میں موجود ہر دکھ اور پریشانی سے زیادہ بھاری ہے۔ اس وقت میں عمر کے اس حصے میں ہوں جب انسان خود عزت کے ساتھ اپنی آخری آرامگاہ کے لیے دعا کرتا ہے، مگر مجھے تو جینے اور مرنے دونوں سے ڈر لگتا ہے۔ اگر میرا ایک مسلمان گھرانے سے تعلق نہ ہوتا تو میں وصیت کر دیتی کہ مجھے مرنے کے بعد بے شک جلا دیا جائے مگر قبر میں دفنایا نہ جائے، کیونکہ میں نے ایک ایسا ظلم کیا ہے جس کی معافی ممکن نہیں ہے۔ میں نے صوبہ سندھ حیدرآباد کے نہایت امیر گھرانے میں جنم لیا۔ شکل و صورت میں بے مثال اور انمول تھی۔ میری شادی بھی ایسے خاندان میں ہوئی جو دولت اور عزت میں ہم سے زیادہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہی رحمتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 بیٹے عطا کیے۔ سسرال میں میری بہت عزت تھی۔ میری ساس مجھے سر آنکھوں پر بٹھاتی تھی۔ مجھے اپنے بچوں میں بلال سب سے پیارا تھا۔ پڑھائی مکمل ہونے کے بعد میرے شوہر نے کاروبار کے سلسلے میں اسے کینیڈا بلا لیا۔ میں بلال کی جدائی سے بہت دکھی تھی مگر یہ میرے بیٹے کے مستقبل کا سوال تھا۔ اس مرتبہ جب سردیوں میں بلال کینیڈا سے آیا تو بہت خوش اور نکھرا نظر آیا مگر کبھی کبھی بے چین اور بولتے بولتے خاموش ہو جاتا تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس مرتبہ باپ کے اصرار کے باوجود کینیڈا واپس جانے کے موڈ میں نہیں لگ رہا تھا۔ میں اس دن آنگن میں بیٹھی دھوپ سیک رہی تھی۔ میری خاص خادمہ زرجانہ آئی اور رازدارانہ انداز میں بولی، بیگم صاحبہ، بلال صاحب کا کلثوم سے چکر چل رہا ہے۔ یہ بات سنتے ہی مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے کانوں میں سیسا انڈیل دیا ہو۔ میں نے سوچے سمجھے بغیر اس کے منہ پر تماشا مار دیا۔ کمینی، تیری یہ جرت، مزید بکواس کی تو زبان کاٹ لوں گی۔ میں اسے گالیاں بک رہی تھی۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ اسے اپنے پاس کھڑا دیکھ کر مجھے مزید غصہ آیا۔ بے حیا، تو میرے سامنے سے چلی کیوں نہیں جاتی؟ میرے ان الفاظ کے جواب میں اس نے آہستہ سے کہا، مالکن یہ سچ ہے۔ اس کی بات پر مجھے دوبارہ جلال آ گیا۔ دل میں آیا کہ اس کے ٹکڑے کر دوں مگر میں نے اسے جھڑک کر وہاں سے روانہ کر دیا۔ کلثوم کا باپ ہمارے گھر ملازم تھا اور کلثوم کی ماں بھی ہمارے گھر صفائی وغیرہ کے لیے آتی تھی۔ کلثوم ماں باپ کی اکلوتی تھی اور کلثوم تھی ہی بہت خوبصورت، گندمی رنگت، لمبے بال، بڑی بڑی کالی آنکھیں، گلابی ہونٹ اور گال پر سیاہی مائل گوشت کا ابھار جسے تل نہیں کہا جا سکتا تھا کیونکہ یہ تل سے بڑا تھا لیکن کلثوم کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا تھا۔ کلثوم کی واحد بدقسمتی یہ تھی کہ وہ ایک غریب ملازم کی بیٹی تھی اور دوسری خرابی میرے بیٹے بلال کے ذہن میں تھی۔ مجھے اپنے بیٹے کی عقل پر حیرت تھی جو ایک نوکرانی کی شادی شدہ بیٹی کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ کلثوم کے ماں باپ نے اس کی آگ لگانے والی خوبصورتی کے ڈر سے اپنے ہی خاندان میں کسی بیمار بوڑھے سے اس کی شادی کر دی تھی۔ مجھے یاد ہے جب وہ شادی کے بعد آئی تھی
तो मैंने उसकी माँ से कहा था कि इसके लिए तुम्हें बीमार बूढ़ा ही मिला था। जवाब में माँ की बजाय कुलसूम ने कहा, मालकिन वो बहुत अच्छा है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। मैंने कहा, अच्छा फिर तो ठीक है। और अब जरजाना क्या बेहुदा बात कर रही थी। इस वाक़ये को अभी एक हफ्ता भी ना गुजरा था कि एक दोपहर मेरा प्यारा बेटा कुलसूम का हाथ पकड़े मेरे सामने आ खड़ा हुआ। अम्मा, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। मैंने कुलसूम से ही शादी करने का फैसला किया है। मैंने इसके शौहर उस बूढ़े से बात कर ली है। बच्चा होने के बाद वो इसे तलाक दे देगा, फिर ये इद्दत के दिन यहीं गुजारेगी और फिर मैं इससे निकाह कर लूंगा। आप इसे अपने साथ रखें, किसी और को अभी इसकी खबर ना हो। मैं शादी के बाद इसे अपने साथ कनाडा ले जाऊंगा। इसके लहजे का इस्तेकाम मुझे हैरान कर गया था। मैंने कुलसूम की तरफ देखा, वो बिल्कुल खामोश खड़ी थी। इस गुफ्तगू के दौरान इसने एक मर्तबा भी आंखें ऊपर नहीं उठाई थी। बिलाल प्यार से बोला, माँ क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं करेंगी? जब बिलाल ने बड़ी मोहब्बत और उम्मीद भरे लहजे में सवाल किया, इसे मेरी कैफियत का अंदाजा नहीं था। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, क्यों नहीं, तुम्हारे लिए जान दे सकती हूँ, तुम फिक्र मत करो। बिलाल मेरी बात सुनकर गोया खिल उठा था। इसने झुककर मेरे हाथ चूमे और कुलसूम से मुखातिब हुआ, अब तुम हर वक्त अम्मा के साथ रहना, ये तुम्हारा ऐसे ख्याल रखेंगी जैसे मेरा ख्याल रखती हैं। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। इसके जाने के बाद मैंने नफरत के साथ कुलसूम के बालों को पकड़कर झटका दिया और कहा, बदजात, तुझे थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? बेगैरत, तू कैसी औरत है? वो तकलीफ के सबब कराहने लगी और रोते हुए बोली, बेगम साहबा, ये सब आपके बेटे का कसूर है। मैंने तो कभी अपने शौहर के अलावा किसी मर्द के बारे में सोचा तक नहीं। आप लोग बड़े असर रसूख वाले हैं, आप लोग जो चाहो कर सकते हो। बिलाल साहब मेरे शौहर से जबरदस्ती तलाक दिलवा रहे हैं। मैंने इन्हें बताया भी था कि मैं उम्मीद से हूँ, मगर इन पर किसी बात का कोई असर नहीं हुआ। मैं भला क्या कर सकती थी? कुलसूम की बातों से साफ अयां था कि इसे अपने शौहर से बहुत प्यार है। इस बात पर भी मुझे अपने बेटे की तौहीन का एहसास हुआ। फिर मैंने सोचा कि ये फरेब कर रही है। मैंने इसे झिड़कते हुए कहा, चल बदजात, मैं तुझे फिर देखूंगी। मैंने इसे बराबर वाले कमरे में जाने को कहा। फिर मैं बिलाल के पास गई और बिलाल से कहने लगी, बेटा, तुमसे ऐसी बेवकूफ़ी की उम्मीद ना थी। उस वक्त मैं तुम्हें इस 2 टके की नौकरानी के सामने कुछ ना कह सकी थी, मगर अब इतना तो सोचो, अगर तुम्हारे बाप और भाइयों को मालूम होगा तो वो क्या सोचेंगे? बिलाल कहने लगा, अम्मी जान, बड़े भाइयों से मैंने बात कर ली है, उन्हें कोई एतराज नहीं है, सब मेरी खुशी में खुश हैं। सिर्फ बाबा को मालूम नहीं है, उन्हें भी मैं कनाडा जाकर सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है बाबा को भी कोई एतराज ना होगा। मैंने गुस्से में कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वो बदजात माँ बनने वाली है। बिलाल बोला, अम्मा, मुझे सब पता है, मैं बच्चा पैदा करने के बाद ही उसके साथ निकाह करूंगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है माँ, मैं उससे बहुत प्यार करने लगा हूँ, प्लीज आप भी मान जाएं। मैंने कहा, तुमने भाइयों के सहारे पर इतना बड़ा कदम उठाया है और वो बदनसीब कुलसूम तो अपने शौहर के लिए आंसू बहा रही है। अम्मा, वो ठीक हो जाएगी, उस बेचारी ने तो अभी देखा ही क्या है। मैं इतनी खुशियां दूंगा कि वो सब कुछ भुला देगी। बिलाल मेरे हाथों को चूमते हुए कहने लगा, मैं बिल्कुल बेबस हूँ, मैं उससे बेहद प्यार करता हूँ। उस वक्त मैं अपने बेटे से हार गई थी और कुलसूम को अपने साथ रखने की हामी भर ली थी। और वैसे भी बिलाल के 5 भाई इसके साथ थे। कुछ दिनों बाद मेरा बेटा बिलाल कनाडा चला गया और कुलसूम मेरे साथ रहने लगी। मैंने महसूस किया कि मेरे बाकी बेटे कुलसूम का ऐसे ख्याल रखते थे जैसे वो वाकई इनकी भाभी हो। मेरी बहुएं भी इसका बहुत ख्याल रखती थी, मगर मैं हर वक्त जलती और कुड़ती रहती थी। कुलसूम को तकलीफ देने और इसकी बेइज्जती करने का कोई मौका अपने हाथ से जाने न देती थी। एक रात मेरी बहू ने मेरे कमरे में आकर बताया कि कुलसूम की तबीयत खराब है। मैंने नफरत से कहा था, जहर दे दो उसे। वो बोली, अम्मा, आप उससे इस कदर नफरत क्यों करती हैं? इस सारे मामले में उस बेचारी का कोई कसूर नहीं है, वो बेचारी इनमें फंस गई है। वैसे भी बिलाल हम सब को बहुत प्यारा है, इसलिए हम कुलसूम का ख्याल रखते हैं। बेहतर यही होगा कि आप भी बिलाल की खातर इसे अपनी बहू तस्लीम कर लें। ये कहकर मेरी बड़ी बहू चली गई और मैं सोचने लगी थी, मैं किसी भी सूरत इस बदजात को अपनी बहू तस्लीम नहीं करूंगी।
मैं रोजाना कलसूम को अपने कमरे में बुलाती और खूब बातें सुनाती। वो रोती हुई चुप करके सब सुन लेती। मैं इस घर से उसे निकाल भी नहीं सकती थी क्योंकि सब की उस पर नजर थी। मुझे इससे इतनी नफरत हो गई थी कि मैं अब इसे जान से मार देना चाहती थी। इससे नफरत की एक वजह यह भी थी कि मैं अपने बेटे बिलाल के लिए अपनी बहन की बेटी किन्जा को अपनी बहू बनाना चाहती थी और कलसूम के होते हुए बिलाल कभी भी किन्जा से शादी करने पर आमादा न होता। अब यह कलसूम की बदकिस्मती थी कि जब उसे 8वां महीना लगा तो मेरे बाप का इंतकाल हो गया। मुझे फौरी तौर पर आबाई गांव जाना पड़ा। बाकी सब लोग तो 40वें के बाद वापस आ गए, मगर मैं गांव में ही रह गई। कलसूम भी मेरे साथ थी। एक दिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। वो काफी तकलीफ में थी। उस वक्त मैंने अपनी खास खादमा की मदद से कलसूम को ऐसी दवाई पिला दी जिसके असर से वो 2 दिन तक सोती रही। अपने मंसूबे के मुताबिक मैंने उस दिन दोपहर को सारे गांव में यह खबर फैला दी कि कलसूम बच्चे की तकलीफ बर्दाश्त न कर सकी और मर गई है। कलसूम के माँ बाप को बुलवाया, वो भी रोते हुए आ गई। जिन औरतों ने कलसूम को गुस्ल दिया, इन्होंने ख्याल जाहिर किया कि लड़की जिंदा है, मगर डर से खामोश रही। नमाज जनाजा पढ़ते वक्त किसी ने गांव के मौलवी के कानों में ये बात डाल दी कि लड़की जिंदा है। इन्होंने मुझसे पर्दे की ओट में आकर कहा, बेगम साहिबा, शायद ये औरत जिंदा है। मैं इसकी नमाज जनाजा पढ़ाकर क्यों अल्लाह ताला के कहर को दावत दूं? जवाब में मैंने कहा था, इस औरत का चाल चलन खराब है। इसने मेरे बेटे को धोखे से अपना असीर बना लिया है। ये बीवी किसी और की है और बच्चा जो इसके पेट में है वो मेरे बेटे का है। मौलवी साहब, आप बताएं, ऐसी बदकार औरत का यही अंजाम होना चाहिए या नहीं? मेरी बात पर मौलवी साहब तौबा तौबा करने लगे और मेरी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, ऐसी औरत को संगसार करना चाहिए। अगर ये जिंदा रही तो मेरे खानदान की बेइज्जती होगी और मेरा बेटा ऐसा करने नहीं देगा और फिर ये बेहयाई सारे गांव में फैल जाएगी। मौलवी साहब मेरी बातों और आंखों के जाल में फंस गए थे। मैंने इन्हें भी 1 लाख रुपया दिया और इस तरह कलसूम को जिंदा दफन करा दिया गया। जब बिलाल को अपने भाइयों के जरिए कलसूम की मौत का इल्म हुआ तो वो फौरन कनाडा से वापस आ गया। आने के बाद वो अक्सर पागलों की तरह रोता था। मेरी बड़ी बहू मुझे शक की निगाह से घूरती रहती थी। कुछ दिन बाद बिलाल वापस कनाडा चला गया और फिर वापस नहीं आया। तब मुझे पता चला कि मेरी खादमा के जरिए न सिर्फ बिलाल को सब हकीकत मालूम हो गई है, बल्कि मेरे घर के सभी अफराद को मेरे गुनाह का इल्म हो गया था। क्योंकि कोई भी बुराई या जुल्म हो वो ज्यादा देर तक छुपता नहीं है, मगर कलसूम के घर वालों को किसी ने कुछ नहीं बताया कि इनकी बेटी के साथ क्या हुआ था। इनकी बेटी तो कब्र में ही दम घुटने से मर गई होगी। आज मेरा जान से प्यारा बेटा बिलाल नफरत की बिना पर मुझसे मिलना तो दूर, मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता। मेरे बेटे भी मुझसे नफरत करते हैं। शौहर के मरने के बाद बड़े बेटे के अलावा बाकी सब गैर ममालिक में जा बसे हैं। मेरा बड़ा बेटा और बहू मेरे साथ सौतेलों जैसा सलूक करते हैं। बहू मुझे किचन में जाने नहीं देती। नौकरों से कहती है, इस पर नजर रखो, इसे जहर खिलाने का तजर्बा है। बिलाल सबका लाडला था। अब मेरी इस हरकत की वजह से सब मुझसे नफरत करने लगे थे। मेरे बड़े बेटे की औलाद नहीं है और मेरी बड़ी बहू का कहना है कि ये इस बूढ़ी को अपने साथ रखने की सजा है, इसलिए मैं बे औलाद हूँ। मैं जाहिरी तौर पर बिल्कुल सेहतमंद थी, मगर किसी भी कमरे में सो नहीं सकती थी। खुले आसमान तले सोने से भी दम घुटता था। नींद के इंजेक्शन लगाने के बावजूद मुझे नींद नहीं आती। इस बात को 10 साल बीत चुके हैं। पिछले 4 साल से मैं अस्पताल में दाखिल हूँ। मुझे जिल्द का कैंसर हो चुका है। मेरे जिस्म में कीड़े पड़ जाते हैं जो मेरे गोश्त को नोच नोच कर खाते हैं। डॉक्टर जिस्म के उस हिस्से पर दवाई लगाते हैं तो वो वहां तो मर जाते हैं, मगर कुछ दिनों बाद दूसरी जगह पर निकल आते हैं। मैं मौत का इंतजार कर रही हूँ, मगर मौत भी नहीं आ रही। मुझे कोई भी मिलने नहीं आता। दिन रात तौबा इस्तगफार पढ़ती हूँ। रो रो कर अल्लाह से मुआफी मांगती हूँ कि मेरे अल्लाह मुझे मुआफ कर दे, मगर ये गुनाह बहुत बड़ा है। वैसे भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अपने हक को मुआफ कर सकता हूँ, मगर अपने किसी बंदे के साथ किया हुआ जुल्म मुआफ नहीं करता जब तक वो बंदा खुद मुआफ ना कर दे। फिर वो औरत बोली, मगर मैं मुआफी मांगने के लिए कलसूम को कहाँ से लाऊं? मैं हाथ जोड़ के आप सबको एक पैगाम देना चाहती हूँ, बाज आ जाओ।
اس طرح کسی پہ ظلم کرنے سے، اگر کوئی میری طرح کسی پر ظلم کر رہا ہے تو خدا اور اس کی لاٹھی بے آواز ہے، اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ ہونے سے بچا لو۔ وہ عورت رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے گئے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی، مجھ سے بھی کہہ رہی تھی کہ بیٹا میرے حق میں دعا کرو، شاید اللہ تعالیٰ کسی کی زبان سے نکلی ہوئی دعا کو میرے حق میں قبول کر لیں اور مجھے معاف کر دیں۔